روانہ ہو جائیں گے نواز شریف۔ آصف کرمانی جو کہ سینیٹر ہیں، حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی، کہا کہ قافلہ کب لاہور پہنچے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے، یہ نہیں معلوم کہ ہماری شام کہاں ہوگی، رات کہاں ہوگی، جہاں رات پڑ گئی ادھر ہی سو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ لوگ بیگانے کی شادی میں عبداللہ بننے کے لیے کینیڈا سے بھی آ چکے ہیں۔ مزید کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے۔ کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو اس وقت جی ٹی روڈ کی طرف رواں دواں ہے، ان حالات میں کوئی واضح یا ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اب تو وقت پہ میں چھوڑتا ہوں اس کو، کیا پتا کہ ہماری دوپہر کا ہوگی، شام کا اور رات کا۔ میں اس وقت یہ نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ ہم لاہور کس دن پہنچیں گے اور کس وقت پہنچیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری منزل جو ہے وہ داتا کی نگری ہے، اور وہاں انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کا خطاب بھی۔ ریلی سے خوف زدہ ہیں، جن کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، جن کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیگانے کی شادی میں۔ ابھی بڑی خبر آپ کو دیں کہ نواز شریف اور اہل خانہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ ابھی یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے عوامی تحریک کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عوامی تحریک نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست دی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ ان پر کیسز چل رہے ہیں، نواز شریف اور اہل خانہ بیرون ملک جا سکتے ہیں اور ان کو اس بات سے روکا جائے، جس کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ وزارت داخلہ نے عوامی تحریک کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ نواز شریف اور اہل خانہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ عوامی تحریک نے یہ نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست دی تھی، لیکن یہ درخواست وزارت داخلہ کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اور اس دن دے رہے ہیں کہ جب ایک اہم سیاسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں نواز شریف، اور واپس وہ گھر جا رہے ہیں، اور جی ٹی روڈ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے گھر جانے کے لیے۔ مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے ان کا قافلہ رائیونڈ پہنچے گا، اور اس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کارکنان پرجوش ہیں۔ متوالوں کا جوش و خروش دیدنی دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان ان تمام جگہوں پر موجود ہیں جہاں سے ممکنہ طور پر قافلہ گزر سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان پوری تیاری کے ہمراہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں نواز شریف یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب ہاؤس پہنچے، یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد اب پنجاب ہاؤس سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خود انہیں گڈ بائی کہنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اسحاق ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں، اقبال ظفر جھگڑا یہاں پر موجود ہیں، خواجہ آصف بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جاری تھا۔ بڑی تعداد میں کارکنان کا جمع غفیر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، جو کہ اس وقت نعرے بازی کر رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ صبح سے یہ کارکنان یہاں پر موجود تھے، ہر رنگ ان کا یہاں پر دکھائی دیا، اور ابھی آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ روانگی کے مناظر ہیں۔ پنجاب ہاؤس سے یہ قافلہ اب سے تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائے گا۔ روانگی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالتی فیصلے کے بعد اب وزیر اعظم تو نہیں رہے، لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی وہ مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں پنجاب ہاؤس سے، یہاں سے ان کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر موجود رہے، انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بغلگیر ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف سے بغلگیر ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی۔ اسحاق ڈار بھی انہیں گلے ملے ہیں، اور اس کے بعد اب انہیں گاڑی میں سوار کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب ہاؤس سے نواز شریف گھر واپس جا رہے ہیں، اور انہیں بھرپور یہاں پر الوداع کہنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کارکنان موجود ہیں، ان کے قریبی رفقا موجود ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہاں پر خود پہنچے انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے۔ اسحاق ڈار پہلے سے ہی موجود تھے، اور اس وقت انہیں نہ صرف یہ کہ گلے مل کر خدا حافظ کہا گیا ہے، انہیں گاڑی میں سوار کیا جا رہا ہے۔ مسکراہٹ ہے نواز شریف کے چہرے پر، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی میں سوار ہو چکے، قافلہ روانہ ہونے کو ہے۔ ڈی چوک پر پہلا پڑاؤ ہوگا، اور اس وقت یہ قافلہ یہاں سے نکل پڑا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان موجود ہیں رخصت کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو۔ ایک بہت بڑا قافلہ ان کے ساتھ گاڑیوں کا بھی ہوگا جو مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا لاہور پہنچے گا۔ تقریباً 3 دن کا وقت بتایا جا رہا ہے، ویسے تو کنفرم نہیں کیا جا
जा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन जो इनिशियल प्लान जारी किया गया था उसके मुताबिक 3 दिन लगेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर पहुंचते और लाहौर पहुंचते ही उन्होंने दाता दरबार पर हाजिरी देनी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, 6000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, 1200 कमांडोज सिर्फ जाती सिक्योरिटी नवाज शरीफ की जाती सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं। और इसके अलावा सड़कों को बहुत जगहों पर बंद किया गया है, इलाकों को क्लियर किया गया है और दुकानें भी बंद करवा दी जाएंगी जिस जिस रास्ते से ये काफिला गुजरेगा। इस काफिले में दीगर शहरों से भी काफिले शामिल होते रहेंगे, जैसे कि अमीर मकाम एक बहुत बड़ा काफिला लेकर पेशावर से यहाँ पर पहुंचे हैं, आजाद कश्मीर से एक बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर पहुंचा है। साबिक वजीर आजम को घर ले जाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि ये कोई सियासी रैली नहीं है, नवाज शरीफ सिर्फ अपने घर जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है कि रास्ते में जगह जगह पर रुककर कारकुनों से खिताब भी किया जाएगा। एक शानदार कंटेनर भी तैयार किया गया है, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ कंटेनर तैयार किया गया है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए, जिसके अंदर एसी भी लगा हुआ है, बेडरूम भी उसके अंदर ही है, 40 फुट का कंटेनर है जिसके अंदर वो जब आराम करना चाहें आराम भी कर सकते हैं, अगर उसके अंदर से खिताब करना चाहें तो उसमें साउंड सिस्टम भी नस्ब है और साथ ही उनके पास एक बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी भी है जिसमें सवार होकर वो जाते रहेंगे। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये सफर कटेगा। पहला पड़ाव जेहलम में होगा, आज रात जेहलम में रुकना है, कल गुजरांवाला में बताया जा रहा है कि शायद रात वहां रुकेंगे और फिर तीसरे दिन जो इनिशियल प्लान है उसके मुताबिक वो लाहौर पहुंचेंगे और दाता दरबार पर हाजिरी देंगे। जोश खरोश दीदनी है, लेकिन कुछ बदनज़मी भी देखी गई है। सिक्योरिटी एहलकार तो बहुत सारे तैनात है, लेकिन ट्रैफिक प्लान जो दिया गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो रहा है। जो GT रोड के लिए ट्रैफिक प्लान है वो अभी तक वाज़ेह नहीं है, सारी हैवी ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें वाज़ेह होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन को शदीद परेशानी है और अपोजिशन ने शदीद तनकीद की है। वो पूछते हैं कि नवाज शरीफ की इस रैली का मकसद क्या है, तो नवाज लीग का कहना है कि कोई मकसद नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ अपने घर जा रहे हैं और उनके चाहने वाले उनसे मिलना चाहते हैं सारे रूट में। और आप देख सकते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, नवाज शरीफ को रवाना किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं, इसाक डार को आप देख सकते हैं, दीगर लीगी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर नवाज शरीफ भी उनकी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं। और अब यहाँ से रवाना हो गए हैं नवाज शरीफ, कुछ ही देर में मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फैज़ाबाद पहुँचेंगे, डी चौक और दीगर इलाकों से होते हुए, और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल वालेहाना अंदाज नजर आ रहा है लीगी कारकुनान का, मतवालों का, जोश खरोश दीदनी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को गले लगाया, खुदा हाफिज का, इसहाक डार से भी बगलगीर हुए नवाज शरीफ और उसके बाद वो गाड़ी में सवार हुए और ये काफिला निकल पड़ा। पंजाब हाउस से ये काफिला निकल चुका है, बड़ी तादाद में मतवाले साथ हो लिए हैं और अब डी चौक जाएंगे जहां से फिर आगे ये काफिला बढ़ेगा। डी चौक की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं और वहां पर ये वो मकाम है डी चौक जहां पर जो दीगर काफिले हैं मुख्तलिफ शहरों से आने वाले वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हर रंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, जो मुख्तलिफ काफिले पहुंचे हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो अपनी अपनी सकाफत के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन सब के लिए जो पैगाम है वो नवाज शरीफ से मोहब्बत का ही पैगाम है। इसी वजह से वो कहते हैं कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तैयारियां भी काफी ज्यादा है। उनका ये कहना है कि अगर एक हफ्ता भी लगा इस सारे सफर के दौरान तो उसके लिए भी वो इंतजाम मुकम्मल करके बैठे हैं। तो इस वक्त ये आप अब से थोड़ी देर पहले के मनाजिर देख रहे हैं कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रुखसत किया जा रहा था और मौजूदा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इन्होंने गले लगाया, उसके बाद इसहाक डार मिले और उसके बाद फिर वो गाड़ी में सवार हो गए थे। ये काफिला अब निकल चुका है और जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये 3 से 4 दिन में लाहौर पहुंचेगा। अगरचे ये आमतौर पर सफर 4.5 से 5 घंटे का है, लेकिन जिस तरह से जाहिर है कि बड़ी तादाद में इस काफिले में गाड़ियां मोटरसाइकिलें शामिल होंगी और इसके साथ साथ बसेस भी शामिल होंगी और जो दीगर शहरों से काफिले वो भी इसमें मिलते चले जाएंगे, जगह जगह रुकेंगे भी, पड़ाव भी होगा, खिताब भी किए जाएंगे, साथ साथ जाहिर है कि आराम भी किया जाएगा। तो इस सारे मामले में मजीद वक्त लगेगा और इस तरह से 3 से 4 दिन में काफिला शहजाद पहुंचने में कामयाब हो सकेगा। लेकिन हम शहजाद ये कह सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में मतवाले जैसे यहाँ पहुंचे हैं, जोश बहुत ज्यादा है इनमें, जोश बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इस पूरी रैली को एक सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया है। 1200 पुलिस कमांडोज जो हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर मामूर कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रास्ते बंद किए गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से एफिडेविट साइन करवाए गए हैं कि जब यहाँ से काफिला गुजरेगा तो वो अपनी खिड़कियां नहीं खोलेंगे और वहां से कोई चीज फेंकेंगे नहीं इस काफिले की जानिब। मुख्तलिफ इलाकों में
पुलिस भी तैनात कर दी गई है और 6500 एहलकार वो हैं जो इस काफिले के साथ साथ होंगे। जहां जहां से ये काफिला गुजरेगा उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, लोगों को वहां से हटाया जाएगा, जो दुकानें हैं उनको बंद करवाया जाएगा और फिर इस काफिले को वहां से गुजारा जाएगा। तो काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सड़क खुली है, वो किस सड़क से अपने दफ्तर जाएं, किस सड़क से वापस आएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह अपने दफ्तरों के लिए रवाना हुए, जो ट्रैफिक प्लान दिया गया था उसके मुताबिक रवाना हुए, लेकिन जिन जिन सड़कों को खुला रखना था इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वो सड़कें बंद थीं और जिनको बंद रखना था वो सड़कें खुली हुई थी। दफा 144 जो रावलपिंडी में नाफिज थी उसको आज सुबह हटा लिया गया है ताकि नवाज शरीफ की रैली वहां से गुजर सके। तो थोड़ी सी बदनज़मी देखी जा रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन देखी जा रही है। लगता ऐसे है कि सारे जो प्लान्स बने हैं वो गुज़िश्ता 1-2 रोज में ही बने हैं और बहुत उजलत में बनाए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रैली आगे जाएगी तो क्या प्लान बनाया गया है जीटी रोड के लिए, क्या प्लान बनाया गया है ठहरने के लिए, क़याम के लिए, उस सब कुछ वाज़ेह होता रहेगा। 5 मकामात बताए जा रहे हैं जहां पर नवाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे कारकुनों से, लेकिन जैसे कि दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आए थे वो सामने वो कहते कि कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं है कि एक खास जगह पे खिताब करना है। जहां पे भी नवाज शरीफ का दिल चाहा, जहां पर भी जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी डिमांड होगी वहां पर नवाज शरीफ बाहर आके खिताब भी करेंगे। हो सकता है कि अंदर से ही खिताब करें। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और 2-3 दिन तक जीटी रोड जो है पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रहेगा। जी हाँ बिल्कुल। और कंटेनर का आपने जिक्र किया शहजाद, तो इससे पहले हमने कल इमरान खान की भी ये बात सुनी कि कंटेनर का उन्हें ताना मिलता रहा था और अब खुद नवाज शरीफ कंटेनर पर सवार होने जा रहे हैं। तो इस कंटेनर से मुतालिक भी हम आपको अपडेट करते हैं कि ये भी बड़ा जदीद किस्म का कंटेनर है जिसमें तमाम बिल्कुल इसमें तमाम सहूलतें भी मैसर हैं और ना सिर्फ ये कि बेडरूम का अरेंजमेंट है, वॉशरूम है, AC है, बल्कि इसमें तमाम तर सहूलियात हैं, साउंड सिस्टम भी मौजूद है। यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहीं से वो फिर खिताब भी करते रहेंगे कारकुनान से। रवानगी हो चुकी, मिशन जीटी रोड शुरू हो चुका, नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस से रवाना हो गया। क्या मनाजिर रहे रवानगी के मौके पर, आबिद मलिक ने आंखों से देखे, उनसे जानेंगे। आबिद ये बताइए कि हमने देखा शाहिद खाकान अब्बासी से गले मिले, इसहाक डार से गले मिले और फिर ये काफिला बहरहाल रवाना हो गया। कितनी बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान भी इसके साथ हो लिए हैं? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो पंजाब हाउस के दोनों रास्तों पर मौजूद है और मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार और दीगर जो लीगी रहनुमा और वज़ीर हैं उन्होंने गले लगा के मियां नवाज शरीफ को रुखसत किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं और जो वज़ीर हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे पंजाब हाउस में। मियां नवाज शरीफ का काफिला यहाँ से शुरू हो चुका है चलना और अब वो इसके बाद डी चौक जाएगा। डी चौक के बाद वो जिन्ना एवेन्यू से होते हुए 0 पॉइंट फैजाबाद, उसके बाद मरी रोड दाखिल होंगे और मरी रोड के बाद टी चौक रवात और उसके बाद आगे जीटी रोड पर उनका सफर शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ जगहों पर खिताब भी करेंगे और ये बताया गया है कि रावलपिंडी, झेलम, गुजरांवाला, गुजरात और इसके अलावा लाहौर में मियां नवाज शरीफ मुमकिनातों पर खिताब करेंगे। एक बुलेट प्रूफ कंटेनर भी मियां नवाज शरीफ के काफिले के साथ रवां दवा होगा जो यहाँ पर पहले पंजाब हाउस पहुंचा और अब यहाँ से डी चौक की तरफ रवाना हो चुका है। इस बुलेट प्रूफ कंटेनर में ये एयर कंडीशनड है, इस पे लाइटिंग सिस्टम है, इस पे साउंड सिस्टम है और यहाँ पर इस पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के झंडे इस पर आवेजा हैं। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर भी हैं। इस मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं जो यहाँ से उनके साथ काफिले में शामिल होंगी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो जगह जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पंजाब हाउस, डी चौक, जिन्ना एवेन्यू और रावलपिंडी मरी रोड पर जहाँ जहाँ से मियां नवाज शरीफ गुजरेंगे मुस्लिम लीग नून के कारकुन उनका इस्तकबाल करेंगे और उन पर फूलों की पत्तियां यहाँ से भी डी चौक रवाना हुए, कब तक पहुंचेंगे डी चौक? जी अभी थोड़ी देर में मियां नवाज शरीफ चूंकि डी चौक यहाँ पर तो कारकुन उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी जगहों पर मौजूद है, रेड जोन का इलाका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मियां नवाज शरीफ को यहाँ से डी चौक पहुँचने में और उसके बाद मियां नवाज शरीफ जिन्ना एवेन्यू पर पहुँच जाएंगे। जिन्ना एवेन्यू के बाद वो 0 पॉइंट और उसके बाद फैजाबाद। तो आबिद मलिक ये बताइएगा क्या मियां शहबाज शरीफ भी इस काफिले के साथ जाएंगे या वो रावलपिंडी में वेलकम करेंगे नवाज शरीफ को? किस तरह देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल? जी देखिए,
देखिए, इस बारे में अभी हमें बताया नहीं गया कि मियां शहबाज शरीफ कहां पर मियां नवाज शरीफ के काफिले में शामिल होंगे। ताहम हम ये बता सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वो उनके साथ रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ से कुछ गाड़ियां पंजाब हाउस से निकल के डी चौक की तरफ रवाना हो रही हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स और दीगर जो बलदियाती नुमाइंदे हैं वो भी शामिल हैं, और कारकुन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी सागदार की गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है, हम देख सकते हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ। और इसी तरह जो दीगर वुज़रा हैं वो भी यहाँ से पंजाब हाउस से रवाना हो रहे हैं डी चौक की तरफ। ताबिद मलिक, इतना बड़ा काफिला रवाना हो रहा है, इतनी सिक्योरिटी है, इतने लोग हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है इस वक्त जुड़वा शहरों में? जी देखिए, ट्रैफिक पुलिस जगह जगह मौजूद है और उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो ट्रैफिक प्लान है वो भी जारी कर दिया गया था। लेकिन जब इतना बड़ा एक काफिला हो, इतनी बड़ी रैली हो, तो उसमें जाहिर है ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं और आगे भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि काफिले में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और लोग जगह जगह गाड़ियाँ साइड पे भी पार्क कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे जाकर आएगी जब ये काफिला मरी रोड में दाखिल होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है और वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा मियां नवाज शरीफ के काफिले को। और इस्लामाबाद में भी अभी जब जिन्ना एवेन्यू में दाखिल होगा वहाँ पे भी काफ़ी रश देखने में आएगा। काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी डिटेल भी नवाज शरीफ के साथ फिर रही है। कम से कम बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद उन एहलकारों की जो इस पूरे कारवान के साथ रहेगा लाहौर तक। जी बिल्कुल, देखिए शहजाद मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उस सिलसिले में जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं एहसन इकबाल, वो पंजाब पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में थे और दोनों वफाक और पंजाब के जो साथ इदारे थे वो भी आपस में राब्ते में थे। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, तकरीबन 6000 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं, जिसमें से 2500 इस्लामाबाद पुलिस के, जबकि 3500 पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। ये तमाम रूट पर तैनात है, रब्बानी रोड पर भी और इस्लामाबाद, जिन्ना एवेन्यू, डी चौक, हर जगह मौजूद है। इसके अलावा जो जैमर्स वाली गाड़ियां हैं वो भी मियां नवाज शरीफ के गाड़ी के साथ साथ और उनके काफिले के साथ साथ सफर करेंगी। और सिक्योरिटी के अपनी तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और कोशिश की गई है कि तमाम जो रास्ता है उसको सील कर दिया जाए और जहाँ जहाँ से मियां नवाज शरीफ गुजरे वहाँ पर शॉप्स और मार्केट्स जो हैं उनको बंद करा दिया जाए, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ से मियां नवाज शरीफ गुजरेंगे उस इलाके की। ठीक है आबिद मलिक, आप हमारे साथ ही रहिए। और इस वक्त हम एक जानिब ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि रैली रवाना हो चुकी है, काफिला निकल पड़ा है। दूसरी जानिब एक अहम खबर आपको दें कि नवाज शरीफ की ये रैली रोकने की जो दरखास्त दायर की गई थी पीटीआई के वकील की जानिब से, उसे मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मकामी वकील की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ और अहले खाना के नाम ECL में डालने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। कल के रोज ये फैसला महफूज किया गया था। उस्मान बसरा पीटीआई के वकील की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी और अब इस दरखास्त को जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया था मुस्तरद करार दे दिया गया है। दरखास्त को मुस्तरद करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ ये फैसला अब से थोड़ी देर पहले सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को कि ये रैली रोकी जाए उसको मुस्तरद कर दिया है और ये रैली रवां दवा है। आप देख सकते हैं ये है वो कंटेनर जो नवाज शरीफ के लिए तैयार किया गया है और इसी के अंदर साउंड सिस्टम भी नस्ब है। अगर वो खिताब करना चाहें तो इसी कंटेनर के अंदर से खिताब भी कर सकते हैं। बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ कंटेनर है ये, जो खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, कंटेनर एक दफ़ा फिर से सियासत का महवर हो चुका है। एक दफ़ा फिर से सबकी नज़रें इस कंटेनर पर जम चुकी हैं, क्योंकि कंटेनर इससे पहले भी हमारी जो सियासी पिछले सालों की जो तारीख है उसमें काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू का महवर भी रहा है और तकारीर में भी उनके हवाले हम सुनते रहे हैं। तो एक और कंटेनर भी अब मैदान में आ गया है जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर है, इसके साथ साथ मरियम नवाज की भी तस्वीर है। ग्रीन कलर का ये कंटेनर है और साउंड सिस्टम इस पर नस्ब है। इसके साथ ये कंटेनर भी हमरा रहेगा गाड़ी के, जिसमें नवाज शरीफ शरीक सफ़र रहेंगे अपने मुख्तलिफ जो रुफ़का हैं उनके साथ साथ। और ये काफ़िला जो कि रवा दवा हो चुका है इस वक्त, ये अपना जो सफ़र है उसको जारी रखेगा। मुख्तलिफ जगहों पर तराने भी बजाए जाते रहेंगे और साथ ही साथ खिताब का सिलसिला भी जारी रहेगा। कारकुनान चूँकि काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं तो उनकी ये डिमांड
रहेगी कि मुख्तलिफ जगहों पर नवाज शरीफ उनसे खिताब करें, उनसे मुखातिब हों और इसके लिए देखा जाएगा कि हालात क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर फैसला किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि पूरे जोशो खरोश के साथ नवाज शरीफ को घर वापस भेजा जा रहा है और उनको अलविदा कहा गया और उसके साथ साथ अब काफिले की सूरत में उनकी रवानगी अमल में आ चुकी है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और जिस रास्तों से इस काफिले को गुजरना है उनको फुल प्रूफ सिक्योर कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो जिन इलाकों से इस काफिले को गुजरना है वहां पर कोई और ट्रैफिक जो आम ट्रैफिक है वो दिखाई नहीं दे रही है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जब ये रैली यहाँ से गुजर जाएगी तो फिर उसके बाद ये रास्ते खोले जाएंगे। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी हर जगह मौजूद हैं, डी चौक पर भी, जीरो पॉइंट पर भी इस काफिले को वेलकम करने के लिए और फिर इस काफिले में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें शामिल होते रहेंगे और बहुत बड़ी तादाद होगी उन लोगों की जो इस काफिले के साथ लाहौर पहुंचेगी। कब लाहौर पहुंचेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस स्पीड से ये काफिला जा रहा है बहुत मुश्किल लगता है कि ये 3 दिन में भी दाता दरबार पहुंच सकें। बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोकेशंस पर मजीद लोग भी इस काफिले में शामिल होते रहेंगे। नवाज शरीफ जगह जगह रुक कर खिताब करते रहेंगे। 2-3 जगहें मार्क की गई हैं जहां पर वो रात रुक भी सकते हैं। सराय आलमगीर में एक होटल है जिसको खाली करा लिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर तैनात कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 की एक गाड़ी वहां पर तैनात कर दी गई है और इस होटल को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है ताकि नवाज शरीफ अगर चाहें तो वहां पर रात को क़याम कर सकें। लेकिन इस वक्त पंजाब हाउस से नवाज शरीफ रवाना हो चुके हैं अपने रफ़क़ा के साथ, अपने साथियों के साथ और अपने कारकुनान के हमरा, और इस वक्त वो जा रहे हैं डी चौक की जानिब। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो डी चौक पहुंच जाएंगे। डी चौक का फासला तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन जो उनकी स्पीड है उसे लग ऐसे रहा है कि काफ़ी देर लगेगी डी चौक पहुंचने में, फिर उसके बाद फैज़ाबाद पहुंचने में। अंदाज़ा एक लगाया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 या 5 घंटे भी लग सकते हैं सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद से निकलते निकलते साबिक़ वज़ीर आज़म को। अभी आप 3 मुख्तलिफ मनाजिर देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक जानिब फैज़ाबाद के मनाजिर हैं जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ काफिले यहाँ पर पहुँचे हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर है लेकिन जो अतराफ की सड़कें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब हाउस के मनाजिर हैं, उस वक्त के मनाजिर जब रवाना हुआ था काफिला, और तीसरी जानिब आप डी चौक के मनाजिर देख रहे थे। तो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के मनाजिर आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हर ही जगह पर कारकुनान भी मौजूद हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, झंडे उन्होंने उठा रखे हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और इसके साथ साथ तराने बजाए जा रहे हैं, उनकी जानिब से रक्स भी किया जा रहा है। नवाज शरीफ नाअहल करार दिए गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो वो उसे कबूल करेंगे, वो घर जाने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस उनकी जानिब से खाली कर दिया गया। कुछ दिन वो मरी में रहे और उसके बाद फिर पंजाब हाउस में उन्होंने डेरा लगाया। यहाँ पर हमने देखा कि सियासी सरगर्मियाँ होती रहीं और उसके बाद अहम फैसले भी किए गए। पंजाब हाउस से अब वो वापस अपने आबाई इलाके में आ रहे हैं और इस वक्त लाहौर उनकी मंजिल है, जाती उमरा रायवंड उनकी मंजिल है। वापस वो अपने घर आ रहे हैं और इसके लिए उन्हें शायान शान तरीके से रुखसत किया जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें गले लगाया और रुखसत किया और उसके बाद अब उनका काफिला बाकायदा तौर पर रवा दवा है डी चौक की जानिब, जहाँ पर मुख्तलिफ दीगर शहरों से भी काफिले पहुँच रहे हैं और इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ जगहों से काफिले शामिल होते रहेंगे, कुछ सिर्फ रुखसत करने के लिए आएंगे, कुछ सिर्फ खिताब सुनने के लिए आएंगे और कुछ आखिर तक यानी लाहौर तक उन्हें पहुंचाने के लिए साथ साथ चलते रहेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि इस रैली का मकसद क्या है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि ताहिर कादरी पाकिस्तान वापस पहुंचे और उन्होंने भी आते यही सवाल किया कि किसको शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जा रहा है।